بلیٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے کرکٹر عامر یامین کے ٹویٹ پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کو احکامات جاری کرتے ہوئے کرپشن میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ تفصیلات جانیں گے، بیورو چیف کراچی فہیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فہیم صاحب بتائیے گا، آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں اس واقعے کے حوالے سے؟ جی، کرکٹر عامر یامین اپنے ساتھی کرکٹر سہیل مقصود کے ساتھ کراچی میں میچ کھیلنے کے بعد ملتان بطور سڑک جا رہے تھے۔ سکرائل پولیس کی حدود میں جو ہے ان کا یہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہ ان کا یہ سفر ہے، یہ ایک اذیت بن گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم شکر ہے کہ ہم پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں نہیں رہتے۔ سکرائل کے مقام پر انہیں پولیس نے روکا اور ان سے جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ رشوت طلب کی گئی اور نہ دینے پر انہیں تھانے لے جانے کی دھمکی دی گئی۔ کرکٹر عامر یامین نے جو ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے 8,000 روپے دینے کے بعد ان کی جان چھوٹی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ سندھ پولیس انتہائی کرپٹ ہے، ہر 50 کلومیٹر پر آپ کو روکے گی اور رقم مانگے گی۔ عامر یامین نے اپنے ٹویٹ میں بلاول بھٹو زرداری کو بھی ٹیگ کیا تھا اور سابق وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ کو بھی ٹیگ کیا تھا۔ انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا کہ ان سے 8,000 روپے لیے گئے اور پنجاب یا کسی دوسرے صوبے میں ایسا نہیں ہوتا۔ باوجود اس کے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے پولیس کے اہلکاروں کو بتایا بھی کہ ہم انٹرنیشنل کرکٹر ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں بغیر کسی وجہ کے تھانے لے جانے کی دھمکی دی گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک روٹین ہے کہ آپ اگر ایک بار رقم دے دو تو ہر 50 کلومیٹر کے بعد آپ کو روکا جاتا ہے۔ پولیس میں کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ کرکٹر سہیل مقصود بھی ان کے ساتھی تھے۔ کرکٹر سہیل مقصود نے بھی جو ہے وہ ان کی یہ پوسٹ جو ہے وہ ڈیپوز کی ہے اور اس حوالے سے جو ہے پھر آئی جی سندھ نے اس کا نوٹس لیا اور انہوں نے جو ڈی آئی جی کا ارکانہ ہے ان سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے معاملے کے اوپر جو ہے احتساب کریں اور جو بھی کرپٹ پولیس اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ لیکن یہ ایک ایسی روٹین کا معاملہ ہے جو ہمارے یہاں عام ہوتا ہے۔ ایک کرکٹر کی جانب سے سوشل میڈیا پر بیان دینے کے بعد کوئی چیز سامنے آئی ہے، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے ہم یہ کہیں گے کہ کوئی پہلی بار ہوا۔ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جس کو سب جانتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کو روکنے کے لیے پولیس کی سطح پر کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں۔ بیورو چیف صاحب یہ بھی بتائے گا کہ کتنے اہلکار تھے اور کون سی پولیس تھی جنہوں نے ان کو روکا؟ یہ سکرائل پولیس کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور اس کو نہیں بتایا عامر یامین نے کہ کتنے پولیس اہلکار تھے، لیکن یہ کہنا ہے کہ جب وہ ہائی وے پر سفر کر رہے تھے تو سکرائل پولیس اسٹیشن کی حدود میں انہیں روکا گیا اور جب انہوں نے یہ بتایا بھی کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹر ہیں، وہ کراچی میں میچ کھیلنے کے بعد ملتان جا رہے ہیں، تو اس کے باوجود جو ہے ان سے جو ہے وہ رقم مانگی گئی۔ انہیں یہ دھمکی بھی دی گئی کہ وہ رقم نہیں دیں گے تو انہیں جو ہے وہ تھانے لے جایا جائے گا، جس سے تھانے لے جانے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ دھمکی دی گئی۔ انہوں نے بتایا ہے کہ عامر یامین نے کہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے 8,000 روپے دیے، 12,000 ان سے مانگے گئے، اس کے بعد انہوں نے 8,000 روپے دیے، اس کے بعد جو ہے انہیں آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ انہوں نے اس بات پر بہت زیادہ انہوں نے کہا ہے کہ پنجاب یا کسی دوسرے صوبے میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن سندھ پولیس جو ہے وہ انتہائی کرپٹ ہے۔ انہوں نے یہ بھی ایک دعا کے انداز میں کہا ہے کہ شکر ہے ہم پنجاب میں رہتے ہیں، سندھ میں نہیں رہتے۔ بیسیکلی جو انہوں نے سندھ پولیس کے کرپشن جو ہے وہ سامنے لائے ہیں وہ، اور بنسبت اگر ہم یہ کہیں کہ بنسبت سندھ کے شہری کے بہت ہی ہمیں ایک عجیب سی بات لگ رہی ہے، کراچی کے شہری کے طور پر ہمیں ایک بہت عجیب سی بات ضرور لگ رہی ہے، لیکن یہ ایک حقیقت بھی ہے اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ سندھ میں کراچی میں جو پولیس ہے اس کی کرپشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی کو جو ہے کرکٹر اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ کے سامنے لائے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو آئی جی سندھ نے انہوں نے اس کا نوٹس لیا ہے اور انہوں نے جو اہلکار ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ہدایت بھی دی ہے۔ بیورو چیف کراچی فہیم صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس واقعے کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ نے کرکٹر عامر یامین کے ٹویٹ پر نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی شہید بے نظیر آباد کو فوری طور پر واقعے کی تحقیقات کے احکامات جاری کرتے ہوئے کرپشن میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی ہے۔ بہت شکریہ فہیم صدیقی آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ بازار حصص میں کاروبار کے دوران تیزی، سرمایہ کاروں نے شیئرز کی خریداری کر کے نیا سنگ میل عبور کر لیا۔ پہلی بار اسٹاک 60,000 کی سطح عبور کر گیا۔ انڈیکس 858 پوائنٹس اضافے سے 60,600 کی سطح پر ٹریڈ ہونے لگا۔ تفصیلات جانیں گے، بسیم افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایاز رانا بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات حاصل کریں گے۔ ایاز بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کا دوسرا روز اور آج ایک اور جو ہے وہ مارکیٹ کے لیے ایک اچھی خبریں جو ہیں صبح سے دیکھی جا رہی ہیں۔ مارکیٹ نے نیا ریکارڈ جو ہے وہ ہائی بنانے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مارکیٹ ایک 60,000 جس کو 60,000 کی بینچ مارک ہے اس کو بھی عبور کرنے میں جو ہے آج کامیاب ہوا ہے۔ مارکیٹ کی کیا سینٹیمنٹس، کیا خبریں ہیں جو اس کو افیکٹ کر رہی ہیں، اس کو جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سی ای او ڈاٹسن دلاویز خان صاحب۔ سر،
मुबारक, एक और बेहतरीन कारकर्दगी आपके स्टॉक मार्केट। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you so much, Ayaz bhai. Once again, thank you so much and Mubarak to all the Pakistan and the stock market participants के पाकिस्तान की तारीख में first time in the history of Pakistan ever highest 60,745 को टच करके मार्केट जो है अभी भी पॉजिटिव जोन में ट्रेड हो रही है. This is all because of positive expectations, positive news on the back of expectations of more than super earnings जो corporate sectors में जो है वो आई हैं, on the back of foreign inflows जो हमें expected हैं, on the back of IMF का deal जो done हो गई है और अभी उसका वो flows जो है वो आएंगे, on the back of higher interest rate जो है वो अभी downward जो है investors जो है वो देख रहे हैं कि वो आएंगे, on the back of के गवर्नमेंट ने जो है जो एक क्रैक डाउन किया था इसके ऊपर जो लिक्विडिटी होल्डिंग के सेक्टर्स जो थे जैसे गोल्ड है, जैसे डॉलर जो था, वहाँ पे करने की वजह से जो लिक्विडिटी का इनफ्लोज जो है वो इस मार्केट में हमें देखने में मिल रहा है और इन्वेस्टर्स जो है स्पेशली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो इस वक्त मार्केट को लीड कर रहे हैं. और अभी भी आप देखें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस जो हैं अभी भी बहुत उसमें गुंजाइश, बहुत ज़्यादा उसमें पोटेंशियल जो है मौजूद है. मूविंग फॉरवर्ड अभी भी जो है मार्केट में पॉजिटिव रहना चाहिए. इंटरडे करेक्शंस या थोड़ी सी जो है ये एक ओवरबॉट कंडीशंस जो कभी नज़र आती है उसको सेटल करने के लिए मार्केट अगर थोड़ा सा वो एडजस्ट होती है तो अपने जो एक डायरेक्शन जो है उसको हमें लूज़ नहीं करना चाहिए. आगे जो है फर्दर क्लैरिटी जो सिस्टम में जो अनसर्टेनिटी का लेवल जो है वो कम हो गया है बाय अनाउंसिंग द इलेक्शन डेट और ये गवर्नमेंट और जो एस्टेब्लिशमेंट सारे मिल के जो है एक पेज पे खड़े हो के पाकिस्तान की प्रोग्रेस, तरक्की और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस उसको बिल्ड करने के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो आज हमें स्टॉक मार्केट में नज़र आ रहा है बाय 60,745 जो हिस्ट्री का सबसे हाई हम आज देख रहे हैं. तो सर अभी सेक्टर बात करें तो इस वक्त बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स आप क्या समझ रहे हैं कि जिसमें हो रहा है आज? जैसे सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के साथ लीडिंग कर रहा है और मजीद कौन से ऐसे सेक्टर्स आप समझते होंगे? अयाज भाई देखें बड़ा नेचुरल सा है कि हायर इंटरेस्ट रेट में हमने देखा कि यहाँ पे रैली जो है फाइनेंशियल सेक्टर्स जो है उन्होंने सुपर प्रॉफिट या सुपर अर्निंग्स जो है वो कमाई हैं, अर्न की हैं बिकॉज ऑफ द हायर इंटरेस्ट रेट. तो वहाँ पे आपने देखा कि फाइनेंशियल सेक्टर्स बैंकिंग जो है उसने सुपर परफॉर्म किया और इंडेक्स को यहाँ पहुँचाने में बहुत ज़्यादा अपना वो रोल प्ले किया है. इसके साथ साथ हायर इंटरेस्ट रेट की जब डाउनवर्ड एक्सपेक्टेशंस जो है मार्केट देख रही है, कभी आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट डाउन होगा तो लेवरेज सेक्टर्स जिनमें आपको टेक्सटाइल नज़र आता है, जिसमें सीमेंट सेक्टर नज़र आता है, तो वो अपने आप को अभी से एडजस्ट करना स्टार्ट कर रहा है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्लाइनिंग जोन में आता है तो ये सेक्टर्स ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी होंगे बिकॉज के इनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है वो ह्यूजली कम हो जाएंगे और अर्निंग पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा. अच्छा, लोग कुछ ऐसी बातें भी माहिरीन की आ रही हैं कि टर्की में अभी हमने देखा कि हालिया दिनों में थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट में बढ़ावा देखा गया है, तो क्या हमारी महंगाई की शरह को देखते हुए क्योंकि अभी भी वो हाई है तो इंटरेस्ट रेट आपको लगता है कम हो सकेगा? देखिए हम टर्की की, इजिप्ट की एग्जांपल्स दे सकते हैं बट फंडामेंटल्स ग्राउंड पे जो है उनको भी हमें जो है रियलिटीज़ जो ग्राउंड पे हैं वो भी हमें देखना चाहिए कि इस वक्त लिक्विडिटी को पार करने के जो एवेन्यूज़ हैं, रियल एस्टेट सेक्टर आप देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे अभी भी इश्यूज़ चल रहे हैं. लिक्विडिटी उस तरह से नहीं है, कॉन्फिडेंस जो है उस तरह से नहीं है, टैक्सेस के इशूज़ हैं जहाँ पे लिक्विडिटी को लेके जाना और इन्वेस्टमेंट करना अभी प्रॉब्लम है. तो स्टॉक मार्केट इज़ द ओनली एवेन्यू राइट नाउ जहाँ पे एक लग रहा है कि आसानी से आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हम उसका इम्पैक्ट जो है वहाँ पे देख भी रहे हैं. और आगे जो है जैसे ही लोग जो है टी बिल्स में एक सेफ जोन में प्ले कर रहे हैं तो अभी देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहाँ पे जो है फिर दोबारा वो लिक्विडिटी भी एक्सपेक्टेड है मार्केट में आना. ठीक, जैसे तफसीलन जो है हमें CEO डॉटसन जो है उन्होंने बताया, दिलअवेज़ खान वो यही बता रहे हैं कि मार्केट में इस वक्त जो कैश इनफ्लो है, चाहे हम अगर गोल्ड सेक्टर की बात करें, चाहे हम तामीरात के शोबे में देखें, वहाँ पे अभी काम इतना नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो सरमायाकारों के पास जो लिक्विडिटी थी, जो सरमाया मौजूद था, उसको कहीं ना कहीं आना था और वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट को तरजीह दी गई है, जिसकी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मार्केट में नए नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं. और मज़ीद उनका यही कहना है कि इस वक्त बहुत पोटेंशियल है मार्केट में, अभी भी गुंजाइश बाकी है. शेयर्स की कीमतें अभी भी उतनी सतह पे नहीं पहुंची जिस तरीके से इस वक्त जो मार्केट के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, जो मार्केट अपना ट्रेड करती हुई 60,000 पे पहुंची है. लेकिन मज़ीद आने वाले दिनों में अगर नई एक ख़बर और आ जाती है जिसके अंदर कि अगर शरह सूद में कमी हो जाएगी तो यकीनी तौर पर जो है कहा जा रहा है कि मार्केट ने मज़ीद एक नया हाई बनाती हुई, और इसका जो है अभी तक कोई ऐसी सतह नहीं की जा रही. मार्केट में बताया ये जा रहा है, माहिरीन का कहना है कि 75,000 तक मार्केट के अंदर गुंजाइश इस वक्त तक मौजूद है कि वो बेंचमार्क अपना बना सकती है. 75,000 की जो सतह है उस पर कायम हो सकती है. जी ठीक है, बाजार हिस्सेस में कारोबार के दौरान तेजी देखी जा रही है. अयाज राना अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका.
साबिक सदर FPCCI अंजुम निसार ने पाकिस्तान की बरामदात मजीद गिरने का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, गैस की बढ़ती कीमत, बुलंद शरह सूद और महंगाई ने मुसाबकत खो दी है। काबिश मेमन से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। काबिश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, एक जानिब जहां महंगी गैस और बिजली की कीमतों के हवाले से मकामी इंडस्ट्री का सर्वाइवल मुश्किल तर होता जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि शरह सूद के हवाले से भी सनतकारों को काफ़ी कंसर्न है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है साबिक सदर हैं FPCCI के अंजुम निसार, उनसे बात करते हैं। 22% स्टेट बैंक का शरह सूद का रेट है और इसका मतलब एक आम आदमी को 24% पड़ता है। 24% 100 में से आप 25% 5वां हिस्सा खाली सूद में दे देंगे या चौथा हिस्सा, तो आप इंडस्ट्री का पहिया कैसे चाहेंगे। गैस की कीमतें कंटिन्यूस बढ़ती चली जा रही हैं। 1350 से 2100 MMBTU कर दी गई है। कोई पाकिस्तान का बड़ा इकनॉमिक्स बता दे मौजूदा शरह सूद पे, मौजूदा गैस के एनर्जी के कॉस्ट के और मौजूदा इन्फ्लेशन के अंदर हम कैसे कम्पीट कर पाएंगे। और यही नतीजा है और इसकी यही नतीजा निकल रहा है और आने वाले दिनों में साफ नजर आया कि हमारी एक्सपोर्ट ज़बरदस्त नीचे तनावुल का नीचे जाएंगी, मैसिव। और आज ही एक आर्टिकल आया है, जैसे आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, जिसमें मैंने कहा था चूड़ियों की सनत दुनिया के खाली 2 शहरों में, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, हैदराबाद में। और गैस बढ़ने की वजह से, गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से वो इंडस्ट्री 80% बस हो चुकी है। और जो दूसरी फैक्ट्रीज हैं वो भी तबाही के धाने पे हैं। आपकी कॉस्ट जब आई नहीं हुई, आप कितना अच्छा इंडस्ट्री चला पाएंगे। तो हमारी गवर्नमेंट से पुरजोर अपील भी है, सजेशंस भी है, स्ट्रॉन्ग हमने प्रोटेस्ट भी किए और आज भी करे हैं। और आइंदा आने वाले दिनों में हम देखें शायद हमें सनतें बंद करनी पड़े, ये चाबियाँ ताले लग, तो किसका नुकसान होगा? गवर्नमेंट का नुकसान होगा, प्राइवेट सेक्टर का नुकसान होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी। ये आज मैं आपके चैनल के जरिए बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेके जल्द से जल्द इन इश्यूज़ को, गैस की कीमतें को रिवीजन करना पड़ेगा। ये कोई IMF की डिमांड नहीं है कि आप गैस की कीमतें बढ़ाएं। उनको अपनी वहाँ पे UF जो चोरी होती है गैस, उसमें नुमाया कमी करें। सर्कुलर डेट हम पे थोप दिया गया है जिसका ताल्लुक गैस की कीमत से नहीं है। इन चीज़ों में अगर कमी हो तो आज भी इंडस्ट्री का पहिया चल सकता है। बिल्कुल, देखें, इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे अंजुम निसार। उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर अपने खदशात का इजहार किया है और ये मुतालबा किया हुकूमत से गैस की कीमतों में जो हालिया इजाफा किया गया है उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस हवाले से कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो मकामी इंडस्ट्री को रिलीफ देने के लिए बर वक्त इक़दाम करे। जी, सदर टाउन के हदूद रेंचोड़ लाइन मार्केट में लोहे के पथारे ताजरों के लिए दर्द सर बन गए। पत्थरों के बायस सीवरेज सिस्टम मुतासर, जबकि सड़कें भी खराब हो रही हैं। तफसीलात जानेंगे जुनैद जावेद से। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रनछोड़ लाइन के इलाके में, जहाँ पर तजावज़ात की भरमार है। तकरीबन 650 से ज़ायद यहाँ पर लोहे के पथारे लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक शहर भर में कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन यहाँ पर जो है वो पथार माफिया के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे एहसन अमीन के इस वक्त भी यहाँ पर पथारों की वजह से बल्दियाती सहूलियात का जो है वो शदीद फुकदान है। ये गटर हैं जो कि मुस्तकिल तौर पर जो है वो बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। सारी पाइपलाइनें टूट चुकी हैं और ये सारी पाइपलाइनों से जो निकलने वाला पानी है वो दुकानों के अंदर इस वक्त दाखिल होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरे साथ यहाँ मार्केट के जनरल सेक्रेटरी मौजूद है, रनछोड़ लाइन सराफा एसोसिएशन के, मोहम्मद अदनान साहब। अदनान साहब, ये बताइएगा कि आप लोगों ने इस मसले पर कहाँ कहाँ बात की और क्यों नहीं सुनवाई हो रही? ये सारा पानी तो आपकी दुकानों में आ रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं जो है यहाँ पर जो मसाइल हैं, बेहिसाब पथारे लगाए हुए हैं और उसके बाद से फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया कि इसे हटाया जाए, लेकिन ये मामला जूं का तू ही है और ये मुस्तकिल मतलब इनकी आप दादागिरी समझे, बदमाशी समझे, तो ये ना इसको कोई इदारा हटाता है ना ये इधर से हटते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मसाइल तो बहुत ज़्यादा है। अगर हुकाम तवज्जो दे तो इन मसाइल को हल किया जा सकता है। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई मौजूद है, हम इनसे ही बात करेंगे। वसीम साहब, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि यहाँ पर जो है वो रात को वारदातें भी होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं हैं और फिर पानी सारा फैल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सारे मसाइल हम ही लोगों के साथ हैं। हम ताजिर बिरादरी है और हमारे साथ सारे मसले हमारे साथ ही है। ना ये काम हुए जा रहे हैं, ना कोई एक्शन हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल, आप यहाँ देखेंगे कि इस वक्त भी रोड की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है और जब यहाँ पर शाम के औकात में रश होता है तो लोग यहाँ पर गिरते हुए दिखाई दे रहे होते हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि फ़ौरी तौर पर जो है वो मामले को हल किया जाए ताकि यहाँ पर बल्दियाती सहूलियात जो है वो मिल सके और ये लोग अपना कारोबार जो है वो बेहतर जारी रख सकें। जी, शाह फैसल टाउन में चेयरमैन और म्यूनिसिपल कमिश्नर के दरमियान सरजंग जारी। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान भी फरीक बन गए। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने इस महास आराई को मुलाजमीन और अवाम दुश्मनी इकदाम करार दिया। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद।
जी बिल्कुल, 2 माह हो गए हैं चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक और म्यूनसिपल कमिश्नर इम्तियाज़ इकबाल फलपोटो के दरमियान दफ्तरी अमूर को लेकर मुख्तलिफ तनाज़ा है और वो तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसके बायस टाउन के 19 महकमों की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो वो ठुस होकर रह गई है। अफसरान की जानिब से चेयरमैन शाह फैसल टाउन को तहरीरी दरख्वास्त भी दी गई है, जिसमें म्यूनसिपल कमिश्नर पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात जो हैं आयद किए गए हैं और इन सारे मामलात के नतीजे में जो मुलाजमीन हैं, ख़ास तौर पे निचले ग्रेड के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, वो अजीब गुमगू की कैफियत का शिकार हैं। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा वर्कर्स फ्रंट शाह फैसल टाउन के जनरल सेक्रेटरी दानिश मिर्ज़ा। दानिश मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है शाह फैसल टाउन में? एक्चुअली मसला ये है कि यहाँ पे HODs ने कुछ शिकायत की थी म्यूनसिपल कमिश्नर के हवाले से कि वो परसेंटेज का कोई इशू आ रहा था उसके हवाले से कि जी वो उनकी डिमांड है परसेंटेज के हवाले से। इसके ऊपर उन्होंने चेयरमैन को भी लेटर लिख के दिया था और मुंतखब चेयरमैन ने भी अपना लोकल गवर्नमेंट को अपना MC की तब्दीली के लिए बाकायदा लेटर लिखा था। अच्छा, उसके ऊपर भी कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और ये तनाज़ा अब बढ़ते बढ़ते इस हद तक आ गया है कि मुतअद्दिद बार ये सुनने में आया कि ऑफिस की तालाबंदी भी की जा रही है। देखिए, इस वक्त तक तो अभी तक इसके ऊपर कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर होता तो यकीनन उसका रिज़ल्ट सामने आ जाता है, या तो म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को बताया जाता है या चेयरमैन साहब को बुलाया जाता। लेकिन इसकी वजह से शाह फैसल टाउन की कारकर्दगी जो आगे बढ़ने की तरफ थी, जो एक उम्मीद की जा रही थी कि लोकल बॉडी के इलेक्शन के बाद बढ़ सकती है, वो बढ़ी नहीं बल्कि पीछे चली गई है। कुल कहा यह जा रहा है कि शाह फैसल टाउन के 2 बड़ों की लड़ाई में, भैंसों की लड़ाई में मेंढक की मानंद पिस रहे हैं मुलाजमीन, और इन मुलाजमीन का ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर केयर टेकर सिंध गवर्नमेंट या फिर महकमा लोकल गवर्नमेंट जो है वो फौरी नोटिस ले, इस तनाज़े को हल कराए और इस तनाज़े को हल कराने के साथ साथ या तो म्यूनसिपल कमिश्नर की तब्दीली जो है वो अमल में लाई जाए, क्योंकि इम्तियाज़ इकबाल फलपोटो का रिटायरमेंट भी करीब है, 40-45 दिन में वो रिटायर होने वाले हैं। नए म्यूनसिपल कमिश्नर की तैनाती से इस मसले को हल किया जा सकता है। सिंध हाई कोर्ट ने गुलबिहार खज्जी ग्राउंड में पार्क और कचरा कुंडी और डंपिंग स्टेशन बनाने के खिलाफ KMC और दिगर को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने आइंदा समाअत पर जवाब भी तलब कर लिया। तफसीलात जानेंगे मुमताज़ जमाली से। देखें जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में गुलबहार के इलाके में खज्जी ग्राउंड को जो है डंपिंग स्टेशन वहाँ और उनको कचरा कुंडी बनाने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालती नोटिस के बावजूद वहाँ पर डंपिंग भी जो है मलबा हटाया नहीं गया, ना ही वहाँ पर कचरा जो है उठाया गया है। लिहाजा आज अदालत में जैसे ये मामला आया तो अदालत ने हैरानगी का इजहार किया कि आखिर पार्क में जो है वहाँ पर ये तमाम मलबा क्यों पड़ा है। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद भी वहाँ पर KMC और DC सेंट्रल की जानब से कोई इकदाम नहीं किया गया। अड़ोस पड़ोस का जो भी मलबा होता है, जहाँ इमारत गिर रही होती है, वो तमाम मलबा यहाँ पर डंप किया जाता है। वहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड समेत दीगर एक पार्क के लिए भी ज़मीन मुख्तस थी और वहाँ पर एक पार्क बना हुआ था, लेकिन अब वहाँ पर कचरा कुंडी है। लिहाजा अदालत ने एक मरतबा फिर KMC, DC सेंट्रल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया। जी, महकमे रेलवे की नाअहली के बायस मुसाफिर परेशानी में मुब्तला हैं। कराची आने और जाने वाली कई ट्रेनें आज भी ताख़ीर का शिकार हैं। पेशावर जाने वाली खैबर मेल 1 घंटा और रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम 1 घंटा 37 मिनट ताख़ीर से रवाना हुई। लाहौर जाने वाली पाक बिजनेस 2 घंटे 9 मिनट, जबकि कराकरम एक्सप्रेस 2 घंटे 6 मिनट की ताख़ीर से रवाना हुई। सियालकोट जाने वाली इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 14 मिनट ताख़ीर का शिकार है। पेशावर जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस भी 4 घंटे 15 मिनट ताख़ीर का शिकार है। कराची दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में फिर तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदगी की शरह 211 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। तिबी माहिरीन ने हवा में मौजूद मुज़र सेहत ज़रात से महफूज रहने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा दे दिया। तफसीलात बताएंगी अक्सा शाहिद। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि शहर भर में ठंड आ चुकी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लेकिन हवा का मयार इंतहाई ख़राब चल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक हवा में आलूदगी की शरह 211 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 100 से 200 पार्टिकुलेट मीटर जो है इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं और 100 से 300 तक जो है पार्टिकुलेट मीटर्स इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है ऐसे मौसम में, ऐसी हवा में, ऐसे गर्दो गुबार में शहरियों को मास्क
इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ये इस तरह कराची मुल्क भर के तीसरे नंबर पे आ रहा है, आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पे हम देख सकते हैं। लेकिन ऐसे मौसम में जो सांस के मरीज़ होते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। लिहाजा माहिरीन के मुताबिक हर शहरी को मास्क पहन के घर से बाहर निकलना चाहिए ताकि वो इस किस्म की किसी भी आलूदगी या किसी भी ऐसे ज़र्रात से बच सके, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर भर में गाड़ियों से निकलने वाला जहरीला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो धुआं है वो शहर को अपनी जद में लेता है। काफ़ी हम देखते हैं कराची भर में ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तरक्याती काम हो रहा है, नुमाइश है, यूनिवर्सिटी रोड है, तो इस तरह से काफ़ी सारे शहरी स्टूडेंट्स वहाँ से जब सफ़र करते हैं तो उनको मास्क पहनना चाहिए ताकि वो किसी भी ऐसी जल्दी अमराज से या किसी भी ऐसी सांस की बीमारी से बच सकें। जी। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में होने वाले आतिशज़दगी की तहकीकात जारी हैं। इस सिलसिले में ईस्ट जोन पुलिस की दरख्वास्त पर एनईडी यूनिवर्सिटी के 2 माहिरीन तहकीकाती कमेटी में शामिल हो गए हैं। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में होने वाले आतिशज़दगी की तहकीकात जारी हैं। तफसीलात जानेंगे, मेराज अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। मेराज, अपडेट कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल एक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया था राशिद मिन्हास रोड पर एक शॉपिंग मॉल में, जिसकी तहकीकात जो है वो पुलिस कर रही है। तो ईस्ट जोन पुलिस ने इसके लिए जो है एक लेटर लिखा था एनईडी यूनिवर्सिटी को, इंतजामिया को, और उनसे 2 माहिरीन की खिदमात इन्होंने मांगी थी, जिस पर आज जो है वो एनईडी यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की जानिब से 2 माहिरीन के नाम जो है वो कराची में ईस्ट जोन पुलिस को दे दिए गए हैं, जिनमें डॉक्टर मसूद रफ़ी हैं जो कि अर्थक्वेक और डिजास्टर्स के जो है माहिर भी हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर अली मेमन हैं जो कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर और आग लगने के वाक़यात पर जो है वो काफ़ी महारत रखते हैं। तो इन दोनों माहिरीन के नाम जो है वो इनको दे दिए गए हैं ईस्ट जोन पुलिस को, और जो तहकीकाती कमेटी डीआईजी ईस्ट जोन की जानिब से बनाई गई थी असफर महेसर की जानिब से, उसमें अभी ये 2 माहिरीन जो है शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद इस तहकीकात में मजीद जो है पेशरफ्त जल्द ही मुमकिन नजर आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मेराज अख्तर आपका। राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या, पुलिस की फैक्ट फाइंडिंग और कमिश्नर की टेक्निकल कमेटी का मुश्तरका इजलास आज होगा। दोनों कमेटियां मुमकिना तौर पर मुतासरा इमारत का मुश्तरका दौरा भी करेंगी। तफसीलात जानेंगे, सलमान सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, अपडेट करें। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम आरजे मॉल के बाहर मौजूद हैं और गुज़िश्ता रोज़ भी पुलिस की जो तहकीकाती टीम है उसकी जानिब से यहाँ का विज़िट किया गया, तमाम जो फ्लोर्स हैं उनका बाकायदा विज़िट किया गया और बारीकी से हर चीज़ जांची गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट भी गुज़िश्ता रोज़ सामने आई, जिसके अंदर ये वाज़ेह चीज़ सामने आई कि जो इमारत है इसके अंदर कोई हंगामी अखराज मौजूद नहीं है, साथ साथ जो आग बुझाने के आलात हैं वो भी मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से 11 लोग जो हैं वो जान की बाजी हारे। और अगर हम लोग बिल्डिंग की बात की जाए तो देखें, बिल्डिंग के अंदर कोई भी ऐसी जगह मौजूद नहीं है जहां से धुएं का अखराज हो सके, जिसकी वजह से दम घुटने से 11 अफराद जो हैं वो जाँ बात हुए हैं। आज मुमकिन तौर के ऊपर इजलास तलब किया गया है, जिसके अंदर डीआईजी ईस्ट असफर मैसर और साथ साथ कमिश्नर कराची जो है वो इस इजलास के अंदर शरीक होंगे, जिसके अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर आगे के लाहे अमल के ऊपर बात की जाएगी। इमारत की अगर हम बात करें तो इमारत को इस वक्त सील किया गया है। जो दुकानदार हैं वो इमारत के बाहर मौजूद हैं, उनका यही मुतालबा है कि इसकी जल्द अज जल्द इंस्पेक्शन की जाए और उसके बाद मॉल को खोला जाए ताकि जो दुकानदार हैं वो अपना कारोबार कर सकें। लेकिन हमने ये देखा कि पुलिस की जो तहकीकाती टीम है वो यहाँ पर आई, उसने बारीक बीनी से तमाम चीज़ें देखी, उसके बाद हतमी रिपोर्ट जो है वो अब तक पुलिस की जानिब से सामने नहीं आई है। तहकीकाती टीम की अगर हम बात करें तो जिसमें डीआईजी ईस्ट असफर मैसर, एसएसपी ईस्ट इरफान बहादुर और दीगर अफसरान जो है वो शामिल हैं, जो कि पूरी एक रिपोर्ट मरतब करेंगे। उसके बाद ही इस जो शॉपिंग मॉल है इसके हवाले से नई फैक्ट्स एंड फाइंडिंग जो है वो सामने आएंगी। अभी की अगर हम बात करें तो आप मेरे अकब में जो है वो देख सकते हैं कि मॉल को जो है वो बंद किया गया है, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे बिठाए गए हैं, किसी को भी मॉल के अंदर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जा रही और पुलिस का यही कहना है कि जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती मॉल को नहीं खोला जाएगा। इंस्पेक्शन टीम के साथ एनईडी के कुछ प्रोफेसर्स वो भी इस जगह का विज़िट करेंगे जो कि इन सारी चीज़ों के माहिरीन बताए जा रहे हैं और जब वो इस चीज़ का विज़िट करेंगे उसके बाद एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो मरतब की जाएगी, उसके बाद मज़ीद चीज़ें सामने आ सकेंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान सलीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
आपको बताएं कि कराची के 29 यूनियन कमेटीज के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादले, जिसका महकमे बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तकर्रुर तबादले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बगैर मंजूरी के किए गए हैं। तफसीलात जानेंगे, आज़ाद नोड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सिंध जो महकमा बल्दियात सिंध ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ तेजी से करना शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन की बगैर इजाज़त से कराची के 29 जो है यूनियन कमेटी के सेक्रेटरी के तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके तहत खैर मोहम्मद को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 4, अयूब गुट आरफ अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 7 गुलस्तान जौहर, सिराज अहमद को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 6 मुस्लिमाबाद और इमरान अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 1 लेबर स्क्वायर कराची तैनात किया गया है। जबकि रमज अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 3 कोकरापार, मोहम्मद इरफान को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 1 बाई जरही, इम्तियाज अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 4 जिया कॉलोनी, गुलाम कासम चुनियो को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 3 चक्री विलेज, शाह जमान को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 6 मेट्रोविल, हामिद अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 8 दरसानो चिनो, मोहिब अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 10 भिटाइयाबाद तैनात किया गया है। इसके अलावा आसिफ अली को सेक्रेटरी यूनियन कमेटी नंबर 7 शांति नगर का इजाफा कर दिया गया। जबकि इसके अलावा जो है 15 से ज्यादा जैसे जो सेक्रेटरी है उनको मुख्तलिफ कराची की यूनियन कमेटी के सेक्रेटरी के इजाफी चार्ज भी दे दी गई, जिसका महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी ठीक है आज़ाद नोड़ियो, बहुत शुक्रिया आपका।